So good morning student, welcome to online classes of Leal Public School. Today we will continue our science chapter number 11 and chapter name is air and water. So let's start. What we will learn in this chapter? We will learn about air. After that we will learn about composition of air and then atmosphere, water, soluble and insoluble impurities, and in the end we will discuss about loading and chlorination. Okay. So let's start. All living things need air and water to live. We need air to breathe and water to drink. Okay, you all know that we required air to breathe and water to drink. So here is activity time. Look at the picture below and write W for children using water and A for children using air in the boxes provided. Also discuss other uses of air and water in the class. Okay, so this activity में you can see this child is given to water the plants, watering the plants. Okay, so we can write over here W. Okay, after that we can write over here air. Okay, ये जो child है ये balloon में air blow कर रहा है. After that गर्ल जो है वो वाटर ड्रिंक कर रही है, सो यू कैन राइट ओवर हियर W. ओके, बिकॉज ये वाटर का यूज कर रही है. एंड एयर की जो साइकिल की जो ट्यूब्स है उसमें भी यहाँ पर एयर फिल किया जा रहा है, सो यू कैन राइट ओवर हियर A. क्लियर? नाउ एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. We cannot see air, but we can feel it when it's moved. The air is a mixture of gases and it contains about 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases like carbon dioxide, argon, helium, hydrogen, and ozone. It also contains water vapor, dust, and smoke. Okay. You all know about that air is a mixture of gases. You also read it about your previous classes, and it contains 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases. Okay. And air और क्या contain करती है? Water vapor, steam जिसे हम कहते हैं, dust and smoke. Okay. इसके सारे जो ये particles हैं ये air में present होते हैं. Now next is composition of air. First one is nitrogen. So nitrogen is not used by living beings directly from the air. Plants get nitrogen from the soil and animals get nitrogen from plants or meat. Nitrogen does not support burning and its absence can make even a small fire uncontrollable. Okay. So जो नाइट्रोजन है उसे जो लिविंग बींग्स हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बिकॉज ब्रीदिंग में डायरेक्टली लिविंग बींग्स क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन, है ना. सो प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को कहाँ से गेट करते हैं? फ्रॉम द सॉइल, एंड एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स और मीट. ओके. एंड जो नाइट्रोजन जो है बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है. ओके. नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट एयर में, वी ऑल नो दैट नाइट्रोजन का 78% प्रेजेंट होता है ना, और नाइट्रोजन जो है बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है. बट अगर किसी प्लेस पर नाइट्रोजन एब्सेंट है, इट मींस वहां पर क्या प्रेजेंट होगी? ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है. ओके. दैट्स व्हाई वहां पर अगर छोटी सी भी आग है, स्मॉल, अगर वहां पर फायर है तो भी वो क्या हो जाती है? अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है. ओके. तो नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, बट अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है देन इवन अ स्मॉल फायर अनकंट्रोलेबल. ओके. Now next one is oxygen. All living things need oxygen and oxygen is also needed for burning. Okay, you all know कि हमें breathing के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है. ऑक्सीजन बर्निंग को भी सपोर्ट करती है. Next is other gases. Carbon dioxide is used by plants for photosynthesis and it is also used in fire extinguisher. Okay, you all know कि plant जो अपना photosynthesis process है, means जो food making process है plants का, with the help of air, water and sunlight की help से complete करते हैं. air में से वो क्या get करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो present होती है air में, उसे plant use करते हैं for their photosynthesis process. एंड उस जब वो फूड मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है देन प्लांट क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन. ओके. जो कि लिविंग थिंग्स को या जो ह्यूमन बींग्स हैं उसे रिक्वायरमेंट रहता है.
एंड जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें भी CO2 फिल्ड रहती है, तभी कहीं भी अगर फायर केस होता है तो वहां पर उस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है एंड वहां पर CO2 स्प्रे कर दी जाती है एंड वो फायर क्या हो जाती है, पुट ऑफ हो जाती है। ओके, आग जो है वो बुझ जाती है बिकॉज CO2 बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑर्गन इज यूज्ड इन मेकिंग बल्ब्स एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। ओके, जो भी हम अपने घरों में बल्ब्स या फ्लोरेसेंट ट्यूब जो यूज करते हैं उनमें कौन सा गैस फिल्ड रहता है? ऑर्गन गैस फिल्ड रहता है। ओके, now next is atmosphere. So what is atmosphere? The earth is surrounded by a blanket of air called the atmosphere. Earth जो है उसके around एक air का blanket present होता है and उसी air के blanket को हम क्या कहते हैं? Atmosphere कहते हैं। The atmosphere is held by the earth's gravity and it can be divided into 5 layers as shown below. Okay, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसे कौन होल्ड करके रखता है? अर्थ का ग्रेविटी। एंड वी ऑलरेडी हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके बारे में प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी अर्थ के सेंटर में प्रेजेंट रहता है एंड ये थिंग्स को अपनी तरफ क्या करता है? पुल करता है, खींचता है। सो दैट्स व्हाई जो एटमॉस्फेयर है उसे भी कौन ग्रैब करके रखता है, कौन होल्ड करके रखता है? अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी। ओके, एंड एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स सी, there are layers of atmosphere, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Clear? Now next is, it's a picture about the atmosphere. So let's discuss. There are different type of layers of atmosphere. Atmosphere की different layers हैं जिन्हें हम यहाँ पर one by one discuss करेंगे. Okay, first one is troposphere. Okay, troposphere is the first layer above the earth's surface and all changes in the weather occur in this layer. ट्रोपोस्फेयर अर्थ के अबव, अर्थ के बिल्कुल ऊपर जो पहला लेयर हमें अपने सराउंडिंग में दिखाई देता है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। एंड जितने भी वेदर चेंजिंग है वो कहाँ अकर होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लेयर एंड मैनी एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर। Ozone layer that absorb harmful ultraviolet rays from the sun is present in this layer. जितने भी एयरक्राफ्ट हमें फ्लाई करते हुए दिखाई देते हैं वो सभी कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं? एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। एंड स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होता है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट हार्मफुल जो रेज हैं उन्हें वहीं पर स्टॉप करता है एंड हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। Now come to next, third layer, that is mesosphere. Mesosphere is the third layer and meteoroids burn out in this layer so that they do not crash into the earth's surface. And what are meteoroids? Meteoroids are small rocks that move in the space. Okay, space में बहुत सारी जो rocks हैं वो move करती रहती हैं and जो वो अर्थ की तरफ आती हैं, तो अर्थ की जो mesosphere layer है वहां पर लेयर अर्थ की जो ब्लैंकेट है यहाँ पर एयर का, एयर में एंड जो मीजोस्फेयर है या जो मेटेरॉइड्स की हम बात कर रहे हैं उनमें आपस में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। ओके, एंड ड्यू टू गैसेस फ्रिक्शन एंड हीट बर्न द मेटेरॉइड। ओके, जो उसमें गैसेस प्रेजेंट रहती हैं एंड जो रॉक्स हैं मेटेरॉइड्स उनमें आपस में क्या होता है? वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिससे कि हीट क्रिएट होती है एंड जो मेटेरॉइड्स है वहीं पर क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, लाइक शूटिंग स्टार। ओके, इट्स बर्निंग मेटेरॉइड। सी इन द पिक्चर, यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? वही बर्निंग मेटेरॉइड्स है। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट लेयर, thermosphere is the fourth layer. Space shuttle orbit in this layer. Yes, so thermosphere is the fourth layer and space shuttle orbit in this layer. Okay, अर्थ से हम लोग जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो भेजते हैं टू गैदर द इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ओके, तो वो जितने भी स्पेस शटल हैं वो यहाँ पर इस ऑर्बिट में, यहाँ पर स्पेस जो शटल ऑर्बिट है इस लेयर में, वहां पर जाकर इस ऑर्बिट में क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं। ओके,
Now next is exosphere. Exosphere is the fifth layer and the air in this layer is very thin. और इस layer में exosphere में जो air है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है यहाँ पर thin होता है. Okay. Now the atmosphere help us in many way. Atmosphere जो है ये बहुत सारे ways में हमें help करता है. Like it protect the earth from becoming too hot by preventing the entry of a large part of sunlight from reaching the earth. Okay, earth atmosphere जो है earth की जो sun की जो sunlight है उसे बहुत ज्यादा जो sunlight है वो earth पर पहुंचने से क्या करता है, prevent करता है, protect करता है ताकि जो earth है उसका temperature बहुत ज्यादा increase नहीं हो. Okay. It protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun and जो ओजोन लेयर है ये सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, स्टॉप करती है, जिससे कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है उन रेज से. It protect us from meteoroids. A meteoroid can make a hole or crater in the ground if hits it. Okay. And we all know, हम already discuss कर चुके हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर है मेसोस्फीयर, ये हमें मेटेरॉइड्स से भी प्रोटेक्ट करता है. मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, स्पेस में मूव करने वाली बिग रॉक्स होती हैं. ओके, एंड अगर ये रॉक अर्थ से हिट हो जाती हैं, अर्थ के ग्राउंड से टकरा जाती हैं, तो वहां पर ये एक बहुत बड़ा होल या एक क्रेटर क्रिएट कर सकती हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये थर्ड लेयर जो मेसोस्फीयर है उसी में ही ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं. Now come to next one, that is properties of air. Air has three properties. It occupies space, it has weight and it exerts pressure. Okay, see in the picture, air जो है occupy कर रही है यहाँ पर space, balloon में जब आपने air fill किया, and air has some weight also. Okay, इस तरह से आप एक flatten balloon और एक blow यहाँ air blow करके हमने यहाँ पर balloon को अगर यहाँ पर hang किया है तो ये देखिए इस तरफ ये जो क्या है down हो रहा है थोड़ा, it means air में weight भी होता है and it exert pressure, ये pressure भी apply करती है. Now write down names of three things in which air is filled. अब आपको three things के नेम बताने हैं जिसमें कि हम air filled कर सकते हैं. For example, balloon और tire tube और football. Okay. Now here is an experiment to show that air exert pressure. Air जो है वो pressure exert करती है, pressure apply करती है. इसको हमें कंक्लूजन करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. थिंग्स नीडेड, अ ग्लास, वाटर एंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. And method is fill water in the glass up to the brim, put the cardboard on the brim of glass and press the cardboard with your hand and turn the glass upside down. Now gently remove your hand and observe. Okay, आपको एक ग्लास लेना है, उसमें आपको वाटर फिल करना है, उसके बाद में आपको उस ग्लास के रिम पर एक कार्डबोर्ड को रखना है और उसे अपने हाथ से क्या करना है, अच्छे से प्रेस करके धीरे से आपको उस ग्लास को क्या करना है, अपसाइड उसका जो था उसे डाउन कर देना है. ओके, सी इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं. एंड उसके बाद में जेंटली आपको क्या करना है, अपने हैंड को रिमूव कर देना है. सो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर हमारा, दैट द कार्डबोर्ड रिमेन इन इट्स प्लेस एंड द वाटर डज नॉट फॉल. कार्डबोर्ड जो है अपनी जगह पर ही है और वाटर भी नहीं नीचे फॉल डाउन हो रहा है. कंक्लूजन है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर आउटसाइड कीप द कार्डबोर्ड इन इट्स प्लेस. ओके, एयर के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया, प्रेशर अप्लाई किया गया, उससे कार्डबोर्ड अपने प्लेस पर है. क्लियर? Now next experiment is take a juice can and make a hole on one side. अब आपको यहाँ पर एक जूस कैन लेना है और उसमें यहाँ पर एक होल क्रिएट कर देना है. When you tilt the can, juice flow out slowly. और जैसे ही आप इस कैन को टिल्ट करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करते हैं, तो उसमें से जूस क्या है, फ्लो आउट होने लगता है, बाहर निकलने लगता है स्लोली. Now make another hole in the other side. Okay, अब नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आपको एक another hole क्रिएट करना है उसी कैन में. ओके, The juice flows out rapidly. अब यहाँ पर जूस रैपिडली फ्लो डाउन कर रहा है, बहुत जल्दी फ्लो डाउन कर रहा है. This happens because of air pressure. और ये किसकी वजह से हुआ है, एयर के प्रेशर की वजह से. Air enters the can from the second hole and it pressure pushes the juice out of the can. यहाँ से second hole जो हमने create किया था उसमें से air enter कर रही है and इस can के अंदर जो juice है उस पर pressure apply कर रही है, pressure create कर रही है, जिसकी वजह से can में से juice जो है rapidly बाहर आ रहा है. Okay.
Next is air pressure help us in many ways. It help us to drink juice through a straw. It help in filling fountain pens and syringe, and it helps in using droppers. Now here is some statement. So write true and false for these statement. First one is air is a mixture of gases. This statement is true. Okay, अभी हमने डिस्कस किया है air जो क्या है gases का mixture है. So that's why this statement is true. Oxygen is needed for putting out fire. This statement is false. Okay, fire को put out करने के लिए, आग को बुझाने के लिए हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, CO2 की रिक्वायरमेंट रहती है. That's why this statement is false. Third one is carbon dioxide is used in fire extinguisher. This statement is true. The atmosphere protects us from meteoroids. This statement is also true. The air pressure help us to drink juice using a straw. This statement is also true. Okay, clear? Now come to next topic, that is water. All plants and animals need water to live. We use water for drinking, cooking, washing, bathing, cleaning, etc. The water that we use mainly comes from various rivers, ponds, lakes, and wells. And the water contains dirt, sand, mud, and germs that make it unfit for use. And the substance that make water dirty or unfit for use are called impurities. Okay, we all know कि जितने भी plants या animals हैं उनको live करने के लिए water का requirement रहता है. And we use water, हम water को different purpose के लिए use करते हैं, like drinking, cooking, washing, bathing. Okay, and water आता कहाँ से हम water को obtain करते हैं, get करते हैं different sources. Okay, like rivers, ponds, lake, wells, etc. Okay, बट वाटर में डिफरेंट काइंड की इम्प्योरिटीज लाइक डर्ट है, सैंड है, जर्म्स है ना, वो प्रेजेंट रहते हैं, वाटर कंटेन करते हैं, जो कि इसे हमारे यूज के लिए क्या बनाते हैं, अनफिट बनाते हैं. हम उस वाटर को डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते. ओके, एंड ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर को डर्टी बनाते हैं या अनफिट बनाते हैं हमारे यूज के लिए, ऐसे थिंग्स को या ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज कहते हैं. क्लियर? So the impurities are two kinds, soluble and insoluble impurities. Impurities जो हैं two types की हो सकती हैं. Soluble impurities that are dissolved in water. For example, salt. हम water में salt या sugar को अगर mix कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से water में क्या हो जाती है, mix हो जाती हैं, dissolve हो जाती हैं. ऐसी impurities को हम soluble impurities कहते हैं. Next is insoluble impurities do not dissolve in water, for example, sand and mud. And soluble impurities cannot be seen in water. Okay, two type की impurities हमने यहाँ पे discuss किए हैं, soluble impurities and insoluble impurities. Soluble impurities that are dissolved in water, पानी में पूरी तरह से dissolve हो जाती हैं. That why हम उन्हें उसे water में seen नहीं कर सकते. आपने water में 1 spoon salt या 1 spoon sugar mix कर दिया है अच्छे से, and उसके बाद आप उस water को देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये pure water है या फिर impure water है. Okay, बट जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं लाइक सैंड या मड है, वो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती हैं, एंड वी कैन इजीली सीन देम. ओके, हम वाटर में उन्हें सीन कर सकते हैं, हम पानी को देखकर बता सकते हैं कि यस इसमें इम्प्योरिटीज हैं, बिकॉज वो कैसी इम्प्योरिटीज हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. क्लियर? So our next topic, removing impurities from water, we will continue in our next class. So thank you so much. Have a good day.